میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی، اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے بی اے کیا ہوا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خامد کی عزت زیادہ کرتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے، بات بات پہ رو پڑنا بیویوں نے، بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہے نا میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامد اچھا نہیں، بھی تو نہ نا اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہیں، ناشکری کرتی رہتی ہیں، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہیں بیبیوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامد اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ اور میں جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے، بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیویاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے لیکن کہتی ہے اٹھیے، ورنہ یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی
हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक का निकाह हुआ था। हजरत अस्मा कहती हैं मैं अपने बाप के घर से गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर थे, बड़ा कुछ था। फरमाती हैं लेकिन जब मैं अपने शौहर के घर गई कोई काम काज करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाते एक घोड़ा एक ऊंट मेरे शौहर का, फरमाती है घोड़े के लिए घास भी मैं लाती और खजूरों की गुठलियां चुन के लाती, चक्की में लाके पीसती और ऊंट के लिए ग़िज़ा तैयार करती। फरमाती है मैं सारे घर का काम काज करती और हद मेरी फर्मा बरदारी की ये थी कि बाहर एक आदमी सौदा बेचने आया और मुझसे कहने लगा तू इजाजत दे तो तेरे दीवार के साए में काम काज इतना करती हूं कि अपने शौहर के जानवरों की देखभाल करती हूं। बाहर एक आदमी सौदा बेचने वाला आया, कहने लगा अस्मा अगर इजाजत दो तो तेरी दीवार के साए में बैठकर मैं चीजें फरोख्त कर लूं। तो फरमाती है नहीं मैं नहीं इजाजत देती, ये मेरे शौहर इस मुमलिकत के सरबराह हैं, मेरे खामद आएंगे तो उनसे पूछ के तुम्हें साए की इजाजत होगी। शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं, हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाए तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आजाद समझना शुरू किया। दोस्तों माओ बहनों बच्चियों याद रखो तुम बड़ी शहजादियां हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो जरूरी हुआ करती है, अपने शौहर के घर में मलका न भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी जरूर होती है। लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हजरत फातिमा अज़-ज़हरा है। सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसती है। हजरत फातिमा और मेरे दोस्तों जितने भी घर के काम बीबी कर ले, कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते हैं। अल्लामा सफूरी ने लिखा है इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन ये दो जहां के शाह है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज्यादा नहीं, अगर चरखा ला दे, हजरत फातिमा फरमाती है चरखा ला दे तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं। मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं घर में। अल्लामा सफूरी ने लिखा है कहने लगी चरखा ला दे, हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के बच्चे पाल के आटा गूंद के सारे काम करके साथ चरखा भी 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती है एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है, जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुक्तदर में जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूं।
नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बज़ाहिर नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूँ। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूं ना। क्या बात है? कहने लगा मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊंट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रोक फेरा ही था, एक बंदा आगे कहने लगा जी ऊंट बेचेंगे? ऊंट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊंट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद? फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे खरीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूं। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 54 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहां से मर्जी ला, मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 54 दिनार कहाँ से आए? हजरत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार, तेरे 6 दिनार तो दरवेश और फकीर ले गया, 100 दिनार का ऊंट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 54 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी ही होती हैं। हजरत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए, इस बरकत के बारे में हुजूर को तो बतला के आइए। शेरे खुदा कहते हैं मस्जिद नबी में कदम रखा, ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया। मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाते ख्याल आया, रसूल करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी शहजादी के 6 दिनारों की बरकत। फरमाया तुझे पता है बेच कौन गया है और खरीद कौन गया है? क्या सोनिया मैं नहीं जानता। फरमाया जो ऊंट बेचने आए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे। फरमाया जो आए हैं वो जिब्रील। जो आए बेच गए मीकाईल थे और जो ले गए और बंदोबस्त करा रहा था मेरा मौला खुदा खुद भी ये मजलिस बंदोबस्त करा रहा था मेरा रब, मेरा रब बंदोबस्त करा रहा था। बहनों बेटियों शिकवा छोड़ दो, गिला छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो, अपना घर बसाओ, अपना घर बसाओ, अपने घर में वक्त गुजारो। मेरे भाइयों याद रखो, गौर करो, बीवी के बारे में उसने सलूक का मुजाहरा करो। हम जब बात करते हैं तो गालियां देते हैं माज़अल्लाह, अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहते, तल्ख जुमले बोलते, सख्ती के साथ पेश आते। याद रखिए बेटी सारा कुछ सुन लेती है पर अपने माँ बाप के खिलाफ बात सुनती है तो कलेजा फट जाता है। बेटे तो कई दफा लालच का रिश्ता होते हैं, बेटी का ही तो प्यार होता है माँ बाप के साथ। बेटी सुन सकती है कि तू उसके भाई को बुरा कहे, तू खुद बताना कि तेरी बेटी के सामने, तेरी बहन के सामने तुझे कोई बुरा कहे तो तेरी बहन बर्दाश्त नहीं करती, तू क्यों किसी के सामने उसकी बहन को, उसके भाई को, उसकी अम्मा को, उसके अब्बा को बुरा भला कह रहा है? तो ये हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अगर तू किसी की बेटी को अपने आंगन में सुख देगा तो अल्लाह तेरी बहन को उसके घर में सुख अता फरमाएगा। अगर तेरे आंगन में किसी की बेटी खुश रहेगी तो कल तेरी बेटी भी किसी के आंगन में खुशी रहेगी। तो इसलिए मेरी अम्मा जी मरहूमा अक्सर फरमाया करती थी, वो कहती थी बेटा किसी की बेटी के साथ जो बदसलूकी करता है
उसकी अपनी भी सुखी नहीं रहा करती। अगर तू किसी से उसने सलूक करेगा, चल यही समझ के कर ले कि मैं इसके साथ करूंगा तो मेरी बेटी अपने घर में सुखी रहेगी, मेरी बहन अपने घर में सुखी रहेगी, मेरी जो है वो बहन और बेटी के सुख की खातिर ही बीवी से उसने सलूक कर लूं। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर सुख चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, सुख देना शुरू कर दो। सुखी रहना चाहते हो, सुख बांटने शुरू कर दो। दुख छोड़ दो, थोड़ी सी जिंदगी है, मुख्तसर सा वक्त है, किसी भी मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाएगी, जनाजे उठेंगे और लोग निकलेंगे। सुख दो, बीवियों इताअत गुजार हो जाओ, गर्दनें झुका दो। तू शौहर का जुल्म बर्दाश्त करेगी तो मेरे इमाम का वादा है, अल्लाह तुझे बच्चों की तरफ से सुख अता फरमा देगा। जवानी में दुख बर्दाश्त किए जा सकते हैं, अगर बच्चों का दुख देखना पड़े तो बुढ़ापे में अम्मा के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर तू चाहती है कि तुझे बुढ़ापे में सुख मिले, इज्जत मिले, वकार मिले, तो आज अपने शौहर की फर्मा बरदारी का। हमारा मामला यह है कि बाहर के गुस्से भी घर जाके निकालते हैं। अंदर गए, ये कौली यहाँ, ये प्याली यहाँ क्यों पड़ी है, ये प्लेट यहाँ क्यों पड़ी है, ये झाड़ू क्यों नहीं दिया, ये खाना अभी तक पका क्यों नहीं, तुमने मेरे लिए कपड़े तैयार क्यों नहीं किए। तुम्हें पता नहीं मैं कमाई करके, भाई तू कमाई नहीं करके आया मियाँ, तू ड्यूटी करके आया। कमाई करना तेरी ड्यूटी है, कपड़े देना, रोटी देना, मकान देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। तू एहसान नहीं करके आया किसी पे, तू अपनी ड्यूटी कर। ये जूते, सुन्नत क्या है, हुजूर की सुन्नत ये है, झाड़ू ना दिया हो बीबी ने तो घर जाओ, झाड़ू पकड़ो और देना शुरू कर दो। बीवी ने अगर बर्तन ना धोए हो तो सुन्नत ये है कि बर्तन पकड़ो और उनको नहीं बोलना आपने, मुझे पता है, पक्की बात है, मैं जानता हूं। आप बर्तन पकड़ो और बर्तनों को धोना शुरू कर दो। अगर उसने कपड़े नहीं धोए तो आप जरा मेहरबानी करो ना, आप उठ के कपड़े धोने शुरू कर दो। भाई बीवी के साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद शरीयत में रखी है उसको जरा समझिएगा। ये रिश्ता प्यार पर कायम है, ये रिश्ता एतबार पर कायम है, ये रिश्ता मोहब्बत पर कायम है, ये रिश्ता खुलूस पर कायम है। मेरे पास एक खातून अपने शौहर समेत आई, कहने लगे जी रात को झगड़ा हो गया तो मेरे मियाँ ने तलाक 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 कह दिया, तो क्या रिश्ता टूट गया। खातून पढ़ी लिखी थी, मैंने उनसे कहा कि हाँ बीबी तलाक हो गई है। तो कहने लगे जी इतना ही नाजुक बंधन था, 3 जुमलों से टूट गया, 3 लफ्जों से, तलाक तलाक, और तलाक टूट गया, इतना नाजुक था। मैंने कहा बहन जी जुड़ा भी तो 3 जुमलों से था ना, कबूल कबूल कबूल, जुड़ गया, तलाक तलाक तलाक, टूट गया, ये नाजुक है। ये जुड़ा कैसे रहेगा, एतबार की बुनियाद पर। जुड़ा कैसे रहेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर। जुड़ा कैसे रहेगा, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, और मैं आपको ये पते की बात बताता हूँ, याद रखिएगा, अपने ज़हन के अंदर तसव्वुर, जिस तरह बच्चे के लिए तसव्वुर होता है ना, हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि बच्चे के लिए तसव्वुर होता है ना, वो जिद भी करेगा, वो बात भी नहीं मानेगा, उसे समझाना भी पड़ेगा, बहलाना भी पड़ेगा, उससे काम भी लेना पड़ेगा, उसके साथ शफकत भी करनी पड़ेगी, कभी शोर मचाए तो पैसे दे के उसको दुकान पे भी भेजना पड़ेगा। जिस तरह बच्चे के साथ रवैया होता है, इस तरह का शौहर जब तक अपना माइंड सेट नहीं करता, जब तक ये मिजाज नहीं बनाता कि मुझे उसके साथ इस तरह का सलूक करना है, मुझे इस तरह उसके साथ अपने रवैयों को रखना है, जब तक तू ये मिजाज नहीं अपनाता तब तक घर के आंगन में खुशी के फूल नहीं खिलते। दरगुजर करना, माफ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी की कोई आदत मुझे पसंद नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी उससे बुग़्ज़ ना रखना, बीवी का बुग़्ज़ ना पालना, अपने मिजाज में उसका बुग़्ज़ ना रखना, और जाके तलाश कर, कोई ना कोई आदत उसकी ऐसी जरूर होगी जो तुझे पसंद आनी शुरू हो जाए। तलाश कर, बुग़्ज़ ना पाल, अपने मिजाज के अंदर बुग़्ज़ ना रख। और फिर फरमाया उसके साथ उसने सलूक कर, खंदा पेशानी से बात कर, मीठे जुमले बोल। करने का काम ये है कि जब बीवी कभी जलाल में आ जाए, कभी गुस्से में आ जाए, और अगर आप ये समझे कि ठीक गुस्से में है, इस तरह हजरत उमर की बीवी गुस्से में है तो गुस्सा उनका दुरुस्त है कि आपको मुझे वक़्त देना चाहिए, देते नहीं। अगर कभी जायज गुस्सा हो तो हमें बीवी का गुस्सा भी सुन लेना चाहिए, और खामन गुस्से में हो तो बीवी को भी कहना चाहिए कि जरा थोड़ी देर को अपने ऊपर कंट्रोल रखे। अगर एक फरीक चुप कर जाएगा तो फसाद खत्म हो जाएगा, अगर मुकाबला रहेगा तो फिर मामला ठीक
नहीं होगा। बीवी खाना पका के लाए तो क्या करना है, उसकी तारीफ करनी है। ये हुजूर की सुन्नत है, हक है औरत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा खाना तो लाओ। सैयद आयशा खाना लाई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है सोनिया सिरका ही है और मेरी तबीयत का भी नहीं बना जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहती थी। सिरके का कुछ मैंने बनाया है लेकिन मैं अपनी मर्जी का नहीं बना सकी। रसूल करीम ने वो सिरके का जिसको खुद हजरत आयशा कह रही है कि मर्जी का नहीं बना, हुजूर ने खाया। हजरत आयशा फरमाती है इतने मजे से खाया कि जैसे बड़ी आला ग़िज़ा हो। फिर हुजूर ने अपनी मुकद्दस उंगलियों को मैंने देखा कि हुजूर चाट रहे हैं। फरमाया आयशा कमाल बना है, आयशा तूने खूब बनाया है, क्या खूबसूरत खाना है। हजरत आयशा फरमाती है कभी मैंने खाना बनाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रसूल ने मेरे खाने में ऐब निकाला हो। कभी पसंद ना होता तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हुजूर ख्याल रखते कि गर्मी के मौसम में बावर्ची खाने में खड़े होके सारा वजूद पसीने से शराबूर है, इसने खाना पकाया। हुजूर मेरे खाने में ऐब नहीं निकाला करते थे। तो बीवी के खाने में ऐब नहीं निकाले जाएंगे बल्कि उसकी तारीफ की जाएगी।